और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating, but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. Indian democracy is also rich in diversity. Hundreds of languages are spoken. There are over 900 television channels across different languages. Thousands of newspapers and periodicals are published. Very few societies manage diversity at this scale. India celebrates such diversity because our democracy has a strong foundation. Our democracy is like a large tree supported by deep roots. We have a long tradition of debate, dialogue, and collective decision making. India is called the mother of democracy. Our sacred texts, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. We are the land of Bhagavan Buddha. The Buddhist Sangha used to have open and structured discussions. Decisions were taken through consensus or voting. Further, there is a 10th century inscription from the Indian state of Tamil Nadu. It describes
a village assembly, their work with democratic values. There were clear rules for accountability and decision making. Our democratic values have been tested by time, supported by diversity, and strengthened generation after generation. Friends, कॉमनवेल्थ की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा भारत में बसता है। हमारा प्रयास रहा है कि भारत सभी देशों के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। कॉमनवेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के क्षेत्र में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। भारत आप सभी साथियों से सीखने का निरंतर प्रयास करता है और हमारा ये भी प्रयास होता है कि भारत के अनुभव अन्य कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के काम आए। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। फ्रेंड्स, इस बार की कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। इसमें स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम लोगों को देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ी भूमिका से जोड़ने का काम है। भारत की संसद पहले से ही ऐसे काम को कर रही है। स्टडी टूर्स, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप के माध्यम से जनता को संसद को और करीब से जानने का मौका मिला है। हमने अपनी संसद में एआई की मदद से डिबेट्स और हाउस प्रोसीडिंग्स को रियल टाइम में रीजनल लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया है। संसद से जुड़े रिसोर्सेज को भी एआई की मदद से यूजर फ्रेंडली बनाने का काम हो रहा है और इससे हमारी यंग जनरेशन को संसद को समझने, उनको बेहतर अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब तक मुझे आपकी संस्था से जुड़े 20 से ज्यादा सदस्य देशों में जाने का अवसर मिला है।
कई सांसदों को संबोधित करने का सौभाग्य भी मिला है। जहां जहां मैं गया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हर बेस्ट प्रैक्टिस को लोकसभा के हमारे अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन महोदय के साथ आकर के तुरंत अपने अनुभवों को साझा करता रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस सीखने और सिखाने के इस क्रम को और समृद्ध करेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।